Hello, dear students. Welcome to my SKI. And now today we are going to start our next chapter, The 100 Dresses by E.L. Bishop Easter. Yes, 5 and 6 चैप्टर आपका फर्स्ट एंड सेकंड फेजेस में डिवाइड है. फर्स्ट फेजेस हम समझ सकते हैं कि जैसे किसी इंटरमिशन से पहले की मूवी हो और सेकंड यानी कि इंटरमिशन के बाद की मूवी हो. सो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लेंदी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. इस चैप्टर में हम एंड तक बढ़ जाएंगे. अगर हम एंड तक इस लेक्चर को सुनते हैं सो हमारे 15 मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये लेक्चर ही आपकी प्रिपरेशन करवाएगा लॉन्ग आंसर्स को लेकर के. ये सो बने रहेंगे एंड तक अपने लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और लॉन्ग आंसर्स तो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ऑलमोस्ट पड़ती भी नहीं है जब आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करते हो. तो 15 मार्क्स तो आपके मैं कहीं जाने नहीं दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर beautiful introduction of the whole story. So the story is told from the perspective of one Wanda classmate. स्टोरी इज रिवॉल्व्स अराउंड थ्री करेक्टर. लाइक वांडा है, इसमें पैगी मिलेगी, मैडी मिलेगी. हम पूरी स्टोरी में जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स स्टार्ट विद next introduction. So Wanda is a classmate and Maddie, who is the best friend of the main player Peggy, in the daily taunting and teasing. So Maddie begins to wonder about the girl, and uh, and her friends used to constantly tease and realize that she knows very little about her, and she begins to wonder why they started teasing her. In first place of overcome with guilt and making fun of the simplicity, because she is poor and has a funny name and is different from them. And Maddie knows that she should have stood up to her friends and defined Wanda. So she feels guilty for not speaking up, and for standing by the allowing her friends to tease Wanda and middle. And her friends later discover that Wanda is very talented artist, and that her drawing of 100 beautiful dresses has won the school's art contest. Yes. And the girl realized that they misguide Wanda, and feel incredibly guilty for never believing her stories of her 100 dresses. So next we are going to describe whole summary with beautiful headings, and these headings are, yes, of course, going to help you for containing your लॉन्ग आंसर्स. या 15 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए. सो हम एक्सप्लेन करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग. वंडा पिटॉन्स्की सीट. पिटॉन्स्की एक कास्ट रिप्रेजेंट करती है, तो उसका फुल नेम है वांडा पिटॉन्स्की सीट. So Wanda Pitansky was a young police girl whose family had immigrated to America. There is one of the towns, and she studied in the school with her American students. Wanda belongs to, कि वो बाहर से आई है ना पढ़ के, इसलिए लोगों को अजीब लग रहा है क्योंकि सब लोगों में वो मैच नहीं हो पा रही है. Wanda belongs to a poor family and could not afford to wear new dresses. Therefore, she would come to school and faded blue dress every day. वो एक ही ड्रेस में रोजाना स्कूल में आती थी, जो कि धुल धुल के फेड भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी जो ड्रेस थी वो बहुत नीट एंड क्लीन होती थी. Peggy makes fun of Wanda. Wanda was a kind of and introvert girl, and kept quiet most of time in her class. In fact, nobody had ever heard her laugh. Student paid attention. देखो क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, शांति से अपना काम निपटाते रहते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता, लेकिन क्लास में वो बखूबी अपना रोल निभाते हैं. वो उस टाइप की स्टूडेंट थी. क्लास सबके क्लासेस में होते हैं ऐसे बच्चे. So while going back home, they waited for in the order to make fun of her, and two of her classmates, Peggy and Maddie, often did so. दो बच्चे, पैगी और मैडी, जिनका नाम था, साथ में रहने वाली गर्ल्स थी. पैगी एक रिच लुकिंग गर्ल है, कर्ली हेयर्स हैं और दमदार करेक्टर है पूरी स्टोरी का. वो उसको टीजिंग करने के लिए बस स्टॉप पे हमेशा ही रुकी रहती थी और उसको उसकी लिक पोलिंग करती थी ऑलवेज ऑल टाइम, उसकी ड्रेसेस को लेकर के, उसके नाम को लेकर के, उसके रंग और रूप को लेकर के. लेकिन वांडा जो है खुश होकर के स्माइल करते हुए उसको एक जवाब दिया करती थी. जब भी पैगी उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास क्या एक ही ड्रेस है, तो वो कौन वांडा उसको आंसर देती थी कि नहीं, मेरे पास तो 100 तरीके की ड्रेस है. आई हैव 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज. यस.
नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज। देखिए जानते हैं सीक्रेट क्या है। यस, नेक्स्ट फ्रेसेस में हमने ये पूरा डिस्क्राइब किया, भी हम जानेंगे इसके बारे में। ये भाई चक्कर क्या है कि 100 ड्रेसेस हैं बंदी के पास में, लेकिन फिर भी वो रोज एक ही ड्रेस पहन के आ रही है जो कि बिल्कुल फेड हो चुकी है, नीले रंग की है, पूरा रंग उतर चुका है उसका, लेकिन ड्रेस हाफ एंड सुथरी रहती है उसकी। सो वांडा पिटॉन्स्की वुड बिकम टू विक्टिम ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फन बिकॉज ऑफ हर varied name and her faded dresses. And Peggy and Maddie were not bad girl, but they used to have some fun with Wanda as they found her name funny. And Peggy made fun of Wanda and asked her how many dresses and she had in her closet. And every time Wanda would reply that she had 100 dresses of different colors and designs. Peggy would also ask her if the dresses were made of silk. Wanda would reply that she had dresses of silk as well as of velvet. उसके पास विविड काइंड्स ऑफ ड्रेसेस हैं, 100 तरीके की ड्रेसेस हैं, 60 पेयर्स ऑफ शूज है, इतना कुछ है, लेकिन फिर भी वो सिंपल सा बन के क्यों आती है। और यही रीजन था कि वो सबके बीच में एक मजाक का कारण बन जाती थी, जिसको लेकर के पैगी उसका ऑलवेज ऑल टाइम लेग पुलिंग करती थी। नेक्स्ट हेडिंग है पैगी एंड मैडी। Peggy may seem to be mischievous, but she was not arrogant. Rather she saved younger girls from the bullets from and other girls from not understand why Wanda behaves strangely and gave false statement about her that she has 100 dresses and 60 pairs of shoes. However, the girl only made fun of Wanda and they never made her cry. So Maddie too was a poor girl and used to wear clothes given by others. मैडी खुद एक मिडिल क्लास को बिलोंग करती है, जो कि पैगी के साथ में हमेशा कंपेनियन बन के रहती थी, लेकिन वो पैगी को गलत करने से कभी भी इसलिए भी नहीं रोक पाई थी क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता था कि अगर उसने पैगी को वांडा की लेग पुलिंग करने से रोका तो कहीं ऐसा ना हो कि पैगी आने वाले कुछ समय में मेरी ही लेग पुलिंग करने लग जाए। इसलिए वांडा ने इस डर के मारे कभी भी पैगी को ये गलत काम करने से रोका नहीं था कि उसकी लेग पुलिंग ना करे, उसको चिढ़ाए ना, उसको छेड़े ना क्लास में जाते आते या बस में उठते बैठते। उसने कभी नहीं टोका था, उसको इस चीज का भी डर था क्योंकि वो मिडिल क्लास को बिलोंग करती थी मैडी। तो उसको लगता था कि अगर मैंने पैगी को रोका तो ये मुझे अपने पहने हुए कपड़े भी नहीं दिया करेगी, क्योंकि पैगी एक रिचेस्ट पर्सन हमारे उस पूरे करेक्टर में दिखाई गई है, पूरी मूवी में दिखाई गई है, पूरे चैप्टर्स में हमने जाना है कि पैगी एक रिचेस्ट पर्सन है। तो उसके पहने हुए कपड़े मैडी पहना करती थी, तो उसको इस चीज का भी कहीं ना कहीं डर था कि अगर मैंने उसको टोका गलत काम करने से तो कहीं ऐसा ना हो कि पैगी मुझे कपड़े भी देना बंद कर दे। इस डर के मारे वांडा ने कभी उसको रोका नहीं था। किसने नहीं रोका था? मैडी ने कभी भी पैगी को रोका नहीं था। सो नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है द ड्राइंग एंड कलर कॉन्टेस्ट। भाई ड्राइंग एंड कलर कॉन्टेस्ट क्या है? स्कूल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ड्राइंग कॉन्टेस्ट, इसमें हमें अलग अलग तरीके की ड्रेसेस बनानी होती है। पैगी को कॉन्फिडेंस है कि सबसे ज्यादा होशियार तो वो, और वो होशियार थी भी, तो उसको लगता था कि भाई कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाली हूँ। लेकिन होता क्या है हम आगे जानेंगे। द रिजल्ट रिजल्ट क्या निकलता है? इट वॉज द डे वेन मिस मैसन, मैसन की क्लास टीचर है, would announce the result of drawing contest, and Peggy and Maddie hurried to their school as it was drizzling. So nobody waited for Wanda, and girls reached their school only to be surprised. And 100 dresses of designs of dresses were displayed in the room. And Miss Mason, जो कि क्लास टीचर है इन बच्चों की, announced that the Jack Bangles had won for the boys, and who also a very good artist into the field of the designs. And she also said that all the 100 designs of dresses had been made by one girl who had won the medal. Yes, और कौन है वो है वांडा। वांडा रिजल्ट जीत चुकी है। वो 100 ड्रेसेस जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसके बारे में वो हमेशा पैगी को बोल दिया करती थी कि मेरे पास कम से कम 100 ड्रेसेस हैं वेलवेट और सिल्क की बनी हुई, और 60 पेयर्स ऑफ शूज भी हैं। वो सब क्या थे पता है आपको? वो थे एक उसकी इमेजिनेशन, जो वो बनाती थी, जो वो ड्राइंग करती थी, और वो ही ड्राइंग उसकी कंपटीशन में फर्स्ट आ चुकी है। सबको बड़ा अफसोस हो रहा है भाई, होशियार लड़की थी, हमने गलत करा उसके साथ में। सो थीम ऑफ द स्टोरी है, वन ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी इज बुलिंग। पार्ट फर्स्ट की जो थीम है वो ये है बुलिंग, बिकॉज एवरी थॉट पैगी एंड मैडी डू नॉट थिंक टू देयर
teasing as bullying and do not mean to make Wanda unhappy, and it is bullying and none less. So Maddie begins to recognize it such, but does not want to say anything in case the teasing transfer to instead of the Wanda. So next जो second phase है उसकी theme कुल मिलाकर के ये बैठती है. तो another theme is racial discrimination, which means or many of us and many have faced or many have meted out to others, and when some of different from the मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी. जैसे आप ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई अगर किसी बाहर से आया हुआ इंसान हो, चाहे वो क्लास में ही कुछ अलग से दिखने वाला इंसान हो, तो लोग उसको एक अलग से दृष्टिकोण से देखते हैं. तो वांडा को सब लोग इसी दृष्टिकोण से देखते थे कि कुछ अजीब सी दिखने वाली लड़की है, बाहर से पढ़ के आई थी और नाम भी उसका कुछ अजीब सा था, और रोज डेली रूटीन में वो एक ही ड्रेस पहन के आ रही थी जो कि नीले रंग की थी और जो कि धुल धुल के बिल्कुल रंग फेड हो चुका था, जबकि वो कहती थी कि उसके पास 100 लड़की की ड्रेसेस थी. और अब ये साफ हो चुका है वो 100 ड्रेसेस उसकी ड्राइंग थी, जिसके बारे में वो पूरी पिक्चर में पैगी को बोलती थी कि मेरे पास 100 तरीके की ड्रेसेस हैं एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर ऑल करेक्टर्स इनटू द स्टोरी. 3 करेक्टर्स हैं. तो पहला करेक्टर हमारा आता है वेंडा का. वेंडा क्या है? सो वेंडा इज द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द स्टोरी द 100 ड्रेसेस, एंड हर फुल नेम इज Wanda Petonsky, and she is an Polish girl origin, and her family now lives in a small town in America after immigration. So Wanda belongs to a poor family and lives at the once place called Boggins Height, and this is one of the poor quarters of the town, and with little of civic amenities, and that's why Wanda's uh, uh, feel was so worried, and Wanda's feet always cracked with mud as the gone to school on her foot after crossing puddles and water and mud. And her poverty is clarity visibility from her dresses, as she always wear an old dress and faded blue dress, but उसकी ड्रेस हमेशा नीट एंड क्लीन रहती थी. ये चीज़ हमने पूरी स्टोरी में जानी है. कपड़े वो साफ सुथरे पहनती थी, चाहे वो एक ही ड्रेस रोज पहन रही थी. अब एक ड्रेस रोज पहनेगी तो कपड़ा रंग उसका फेड भी हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा करेक्टर आता है मैडी. तो मैडी वॉज अ वांडाज क्लासमेट एंड पैगीज बेस्ट फ्रेंड. Like Wanda, Maddie also belongs to a poor family and she used to wear clothes given by others. So she was sympathetic to Wanda क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता था कि भाई हमारी मिलती जुलती कुछ स्टोरी है. And she and Peggy were fast friends. And Maddie was embraced by cautions. Peggy asked Wanda, and she too was not having many dresses and was afraid to being at the receiving end. And additionally, she could understand the trauma that Wanda must be undergoing while being taunted. And Mitchell decided to write note of the Peggy's asking for the stop making fun and Wanda, but not could not muster and courage to give a note of her. मैडी को लगता है कि भाई अब मैं इस चीज के खिलाफ एक आवाज उठाने वाली हूँ. मैं पैगी को अब टोक के रहूंगी उसकी इस हरकत के लिए, क्योंकि वो हर समय उसको टॉन्टिंग वे में बातें करती है. अब क्या होता है, मिडिल ऑफ द स्टोरी क्या होती है, सेकंड फ्रेजेस में हम जानेंगे कि ट्रांसफर हो जाता है किसके फादर का, वांडा के फादर का, और वो लेटर लिखती है अपनी टीचर को कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ. तो जब वो लेटर क्लास के अंदर सुनाती है सबको दुख होता है कि अरे ये तो कंपटीशन जीत चुकी है और अपने कंपटीशन का रिजल्ट सर्टिफिकेट और जो गिफ्ट प्राइज उसको मिला है वो लेने के लिए क्लास के अंदर आई भी नहीं. सबको बुरा लग रहा होता है. तो पैगी और मैडी को भी इस बात का बहुत बुरा महसूस होता है और वो अंदर अंदर सोचती है कि हमारी वजह से शायद कुछ हो गया है यहाँ पर. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. वो वहाँ पे अपने ट्रांसफर हो जाता है तो वो चली जाती है और वहां से वो लेटर अपनी टीचर को लिखती है. मैडी को ये चीज़ें बहुत बुरी लग रही है. मैडी को लग रहा है कि भाई अब मैं आवाज उठाऊंगी और मैं बोल के रहूंगी कि भाई नहीं ये गलत किया पैगी तुमने हमको से, वी शुड हैव टू फील सॉरी फॉर हर. नेक्स्ट करेक्टर पैगी का आता है. पैगी वॉज अ वांडा's classmate and enjoyed the state of being the most popular girl in the school, as she was prettiest and curly hair and same and rich family she had, and many pretty clothes. And she was somewhat mischievous, as she used to have some fun with Wanda Petonsky because
of her varied name and dresses senses. And she also teased her by asking how many dresses she had in her closet. So, however, we know that she is not bad at heart, neither she is cruel, and she often saved students from the bullies of the schools. When Wanda leaves the school to go another city, she feels yes bad sometimes. So हम समझ सकते हैं कि दिल की बुरी बच्चियां नहीं थी, बस थोड़ा सा उनको लग रहा था कि ऐसा क्यों बोल रही है कि 100 ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस है तो ऑफ कोर्स शी शुड हैव टू वेयर ना, वो रोज पहन के क्यों नहीं आती है, तो बस उनको यही लगता है। तो मैंने इस स्टोरी में कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए हैं जो कि इस स्टोरी में समझने वाले हैं। नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ सिंपल लुकिंग पर्सन। सिंपल लुकिंग पर्सन थी बंदी वो, कौन, वांडा, लेकिन उसने क्या किया, एंड में धमाल मचा दिया भाई। प्राइज जीत गई थी वो, और वो विनर बन चुकी थी, सबके दिलों की रानी बन चुकी थी। एंड में पता है क्या होता है, एंड में वो जब लेटर में लिखती है कि भाई मेरे जो, किस तरीके से उसने मैसेज दिया कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, पैगी से और मैडी से, वो एक लेटर लिखती है और लेटर में लिखती है कि मेरी जो ड्रेसेस हैं वो सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएं जो मैंने बनाई है, और उसमें से जो ग्रीन वाला ड्रेस है ना वो तो आप मेरी मैडी को दे दो, एक अनदर कलर की ड्रेस जो है वो पैगी को दे दो। और दोनों जब वो ये जिस ड्रेस को पाती हैं टीचर के द्वारा, तो उनको इस चीज का आंसर मिल जाता है कि यस वांडा हमसे गुस्सा नहीं है, उसने हमें ड्रेसेस दे करके ये चीज दिखा दी है कि वो अब भी स्टिल वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं। सो ब्यूटिफुल एंड इस स्टोरी का। सो डियर चिल्ड्रंस, कीप रीडिंग ऑलवेज एंड हैव अ नाइस डे।